Any confusion? Right, G. So who is joining now? Imania. चलें फेज 5 का भी एक बच्चा आ गया. अस्सलाम वालेकुम इमानिया एंड अब्दुल रऊफ बिलाल. अब हम स्टार्ट कर रहे हैं जी. आज एक P4 करते हैं बिकॉज वी डिड P3 yesterday. तो आज P4 एक मैंने निकाल के रखा था. नहीं, आई डोंट थिंक आई ओपनड इट. Here we are. तो नवंबर की मैं आपको 41 42 दोनों करवा चुका हूँ. अब लेट्स गो टू 43. और ये ट्रेडिशनली टफर पेपर होता है 43. फॉर सम रीजन आई डोंट नो, कोई जोन का चक्कर है, ये थोड़ा टफर होता है. लेकिन कोई मसला नहीं है. You guys are as tough as a paper, no worries. So let's move on to मैं साथ साथ मार्क्स स्कीम भी खोल ली है just in case we need to refer to guidance. तो let's start with section A. जरा जल्दी में करते हैं ताकि section B को भी एक एक क्वेश्चन तो section B और C का briefly डिस्कस कर सकें. The decline of South Africa's economy. South Africa is the most industrialized country in the continent of Africa, but it is also an economy with much economic inequality. ठीक है. Recently, governments in South Africa have aimed to reduce economic inequalities by redistributing incomes and increasing both job and investment opportunities for all sectors of society. थोड़ा सा इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ जा रहा है क्वेश्चन टॉपिक, कि भाई सबको बेनिफिट हो इकोनॉमिक ग्रोथ का. Unfortunately, the reforms have been undermined through poor organization and management of state railways, poor facilities, airways, and electricity production have been affected. हमारे जैसी लोड शेडिंग वगैरह उधर भी हो रही हैं, रेलवेज में भी तो तकरीबन पाकिस्तान वाले सिम्टम्स हैं, लेकिन खैर इट्स अ मच मोर एडवांस कंट्री. Government statistics for the first quarter of 2020 show that South Africa's economy contracted by 3.2%, means GDP पहले क्वार्टर में पिछले क्वार्टर से 3.2% गिरा है. The biggest quarterly decline of actual economic growth, जरी बात है, GDP refers to actual economic growth um, in a decade. एक सेकंड जी, लेट मी जस्ट हिट एंटर. उसके बाद वो कह रहे हैं जी कि यस, कहाँ था डिक्लाइन इन, या पर कैपिटा, हाँ, डिक्लाइन ऑफ एक्चुअल इकोनॉमिक ग्रोथ इन अ डेकेड. सी फिगर 1.1. जीडीपी पर कैपिटा वाज $, 6,130 in December 2019, 5%, 5.8% lower than in December 2018. पिछले साल से 5.8% जीडीपी पर कैपिटा भी गिरा है. ये परसेंटेज चेंज इन जीडीपी, ये परसेंटेज चेंज इन जीडीपी पर ईयर दिखा रहे हैं. ठीक है, कुछ थोड़े से बूम ईयर्स आए हैं और उसके बाद मुसलसल पहले स्लो स्पीड पे ग्रोथ हुई है, फिर 2018 में नेगेटिव भी हुआ है. 5 0 से नीचे आके नेगेटिव, यानी कि जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, परसेंटेज वाइज गिरी है आउटपुट की वैल्यू. So, economic decline is reflected in the electricity supply industry, which is a state-owned monopoly. It is struggling to survive mainly due to mismanagement. For several months, it rationed electricity consumption, load shedding की है जी, introduced regular power cuts for households and industries. The rationing policy led to decrease in production and increase in unemployment. Companies' debts increased significantly to South Africa's current national debt to GDP ratio of 56%. कंपनी का डेट इतना था कि साउथ अफ्रीका की करंट नेशनल डेट टू जीडीपी रेशियो 56% पर पहुंच गया है एंड आर सीन एज द बिगेस्ट थ्रेट टू द इकोनॉमी. Further evidence of economic difficulties can be found in the mining industry, a significant part of South Africa's economy. एक सेकंड जी. ठीक है जी. So further evidence can be found in the mining industry, a significant part of South Africa's economy. A controversial reform was introduced to give more equality of ownership. Already facing rising cost and growing bureaucracy, many mining firms, including multinational companies, stopped investing altogether, which reduced potential economic growth. The mining industry declined. Thousands of jobs were lost despite South Africa having significant deposits of platinum, gold, and iron ore. तो थोड़ा सा स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का भी यहाँ पे कुछ आ रहा है. तो मेनली जीडीपी, लिविंग स्टैंडर्ड्स, इनकम इनक्वालिटीज, कुछ इस तरह की, या कोई पॉलिसीज के बारे में पूछेंगे कि क्या यहाँ पे इन्होंने गलतियां की हैं. तो दिस इज व्हाट द पेपर लुक्स लाइक. Let's now go to the questions. अच्छा, थोड़ा सा और भी है. For South Africa's economy to grow, it needs to address major infrastructure issues.
यानी इनकी सप्लाई साइड में गड़बड़ आ रही है। राइट जी। अब इसको देखो, वो कहते हैं जी, साउथ अफ्रीका इकोनॉमी, for South Africa's economy to grow, it needs to address major infrastructure issues. Also, in disadvantaged communities, the education system is weak, contributing to a skills shortage and a rise in unemployment rate to 27%. Increased production is further hindered by restrictive trade union practices. तो ओवरऑल मोर मैक्रो बेस्ड लग रहा है जी। अनएम्प्लॉयमेंट की परसेंटेज दिखाई हुई है कि वो मुसलसल अप एंड डाउन फिगर्स हैं, बट ट्रेंड इज अपवर्ड। साउथ अफ्रीका का अनएम्प्लॉयमेंट रेट पहले गिरा है और फिर दोबारा 15 ऑनवर्ड्स बढ़ना शुरू हो गया, बट नॉट अलार्मिंगली हाई। सॉरी, ये है परसेंटेज ऑफ जीडीपी है, सॉरी, फिगर 1.2 वाज अनएम्प्लॉयमेंट रेट और ये जीडीपी है। तो वो नहीं, सॉरी मैं गलत पढ़ गया हूँ। परसेंटेज ऑफ जीडीपी, साउथ अफ्रीका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स यानी मल्टीनेशनल्स का कितना हिस्सा इनके जीडीपी का है। तो पहले 3.5% पे होता था, अब सिर्फ 1.5% रह गया ओवर द टाइम। सो मल्टीनेशनल, जैसे डेटा ने कहा, अब वहां से कूच कर रही है। An analyst said a critical reason for low economic growth has been a lack of private sector investment and FDI. The lack of investment wasn't just due to political policies, but also to uncertainty and mismanagement, which led to continued inequalities. तो बच्चों, मेनली inequalities, आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ, आपका जीडीपी, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, कुछ इस तरह की बात, और फिर इन पे कुछ असेसमेंट इसी डेटा से वो पूछने वाला है। तो लेट्स सी, डिस्क्राइब व्हाट इज मेंट बाय इकोनॉमिक इक्वालिटी एंड डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम इक्विटी। विल समवन वांट टू ट्राई इट? कोई बताएगा कि इकोनॉमिक इक्वालिटी और इक्विटी में क्या फर्क है? डिस्टिंग्विश करें साफ साफ। चलिए इसलिए आप बता दो। Equity usually refers to fairness, which is like giving equal benefits to everyone in economic. नॉट इक्वल बेनिफिट्स, Okay. ठीक है, फेयर चांस टू एवरीवन, ठीक है। Fair chance to everyone, and economic equality suggests giving just as in giving equal treatment instead of चले, dependent on. काफी हद तक बच्ची ने सही बताया। इक्वालिटी इज सेम ट्रीटमेंट, एग्जैक्ट सेम ट्रीटमेंट। इट्स अ पॉजिटिव इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट। It means distribution of wealth should be perfectly equal. Job opportunities should be perfectly equal, which is neither possible nor desirable. ठीक है जी, माहिन, राइट। तो जबकि equity has to do with fairness, it is a normative concept, कि जो जॉब अपॉर्चुनिटीज वगैरह हों वो ज़्यादा इंक्लूसिव हों, सब ग्रुप्स के लिए कुछ ना कुछ उसमें मौका निकल रहा हो। ऑल दोज ऑन सेम लेवल ऑफ इनकम शुड पे द सेम रेट ऑफ टैक्स। तो एक बार फिर ये काफ़ी बार रिपीट हो चुका है इक्वालिटी एंड इक्विटी का पास्ट पेपर्स में। तो इक्वालिटी इज एग्जैक्ट सेम ट्रीटमेंट, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट, जैसे इक्वल जॉब अपॉर्चुनिटीज फॉर एवरीवन, यानी मेन वेमेन ब्लैक वाइट, ठीक है। जबकि equity on the other hand has to do with fairness, कि income distribution, wealth distribution सोसाइटी के लिए एक्सेप्टेबल हो, बहुत वाइड इनकम गैप्स ना हो, या फिर और एवरीबॉडी ऑन द सेम लेवल ऑफ इनकम शुड पे द सेम रेट ऑफ टैक्स। तो डिफरेंट ब्रैकेट्स को अफोर्डेबिलिटी के मुताबिक टैक्स हो। तो अब जरा इसकी मार्क स्कीम से चेक करते हैं, क्योंकि दे frequently keep changing their mark scheme, so need to keep updated. Let's go. फिर सेक्शन ए तैयार करना मुश्किल से आधे घंटे का काम होता है। देखें, मार्क स्कीम से रेफर करें, लिखने की जरूरत भी आमतौर पर नहीं पड़ती, लेकिन अगर आपका दिल करे जरूर लिखो। सो जी, इकोनॉमिक इक्वालिटी इज द इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, वेल्थ, अपॉर्चुनिटीज बिटवीन across all sectors of society. This could affect job prospects, earning, education. दो तक मार्क्स आपको दे सकता है। Equity is fairness, justice, any relevant comment, normative है ये, ठीक है जी। हर बंदे का अपना व्यू है कि equity क्या है, fairness क्या है, ये desirable है। अगेन नॉर्मेटिव वर्ड मैंने बोला। जबकि equality is perfect equal distribution of income, wealth, opportunities between all sectors of society. दिस कुड अफेक्ट जॉब प्रॉस्पेक्ट्स, अर्निंग, एजुकेशन, जैसे मैंने बोला मेन विमेन सेम राइट्स होने चाहिए जॉब्स में, ब्लैक एंड वाइट। तो जिस तरह की कमेंट भी कर दो, अगर बेसिक सही रखोगे तो 3 मार्क्स मिल जाएंगे। किसी बच्चे को इक्वालिटी और इक्विटी में कंफ्यूजन, किसी ने जवाब नहीं दिया था, तो आई एम बिट सरप्राइज। आसान है जी बेटे, सॉरी।
नहीं, बहुत फर्क है बेटे। एक्विटी या फेयरनेस है, जस्टिस, मसलन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है। मेरे हिसाब से फेयरनेस अलग होगी, आपके हिसाब से अलग होगी। ठीक है, यानी इतने वाइड इनकम गैप्स ना हो कि बिल्कुल ही अनफेयर अनइक्वालिटेरियन सोसाइटी बन जाए। इट इज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट। जबकि इक्वालिटी मींस परफेक्टली सेम ट्रीटमेंट टू ऑल ग्रुप्स ऑल सेक्टर्स अक्रॉस द सोसाइटी, परफेक्टली इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, चाहे जॉब्स में है, चाहे अर्निंग्स में, एजुकेशन में है। वो पॉसिबल भी नहीं है और डिजायरेबल भी नहीं है। एक्विटी इज डिजायरेबल। समझ आया अब? यही फर्क समझ आ गया? देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। ओके, नहीं आपको समझ नहीं आया वैसे। टेल मी इफ देयर एनी कंफ्यूजन स्टिल। नहीं नहीं नहीं, अब माइक बंद करो। दोनों में सेम हर चीज पे अप्लाई हो रही है। एक्विटी मींस हर आदमी के पास पाकिस्तान में सेम अमाउंट ऑफ इनकम एंड वेल्थ हो, हर बंदे के पास इक्वल जॉब अपॉर्चुनिटीज, एजुकेशन, हर चीज में। इक्विटी ऑन द अदर हैंड इज कि एक फेयर सी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हो, इनकम गैप्स इतने वाइड ना हो। ठीक है, इनकम गैप्स बहुत वाइड ना हो। नॉर्मेटिव कॉन्सेप्ट है इसमें, मतलब कि जरा इंसाफ के साथ रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हो, अपॉर्चुनिटीज में सबको हिस्सा मिल रहा हो, बट परफेक्टली इक्वल नहीं। अब समझ आ गई बात? ओके, आई होप सो। तो इनको यही है, आप जैसे बच्चों के लिए मैं स्पेशली कहूंगा कि डेफिनेशंस को रट लिया करें ताकि गलती का इम्कान कम से कम हो। चलिए, लेट्स मूव ऑन। डिफाइन व्हाट इज मेंट बाय एक्चुअल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एनालाइज द रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड अनएम्प्लॉयमेंट एज इलस्ट्रेटेड बाय फिगर 1.1 एंड 1.2। उस पे हम 2 मिनट बाद जाते हैं फिगर्स पे। कोई बच्चा मुझे एक्चुअल इकोनॉमिक ग्रोथ की डेफिनेशन दे। Which class is this? Why are you guys not answering, huh? That's probably the concept you've studied right throughout AS. Yes, बोले बोले। वेरी गुड। चलिए, आपने काफी हद तक अच्छा कर दिया। पहले हमेशा इकोनॉमिक ग्रोथ को डिफाइन करना है। इट इज द राइज इन रियल जीडीपी ओवर टाइम। एक्चुअल इकोनॉमिक ग्रोथ इज ड्यू टू यूटिलाइजिंग द प्रीवियसली unemployed resources and the economy moves from a point inside PPC towards PPC. Cause of this is always shift of aggregate demand to the right. तीन बातें। रियल जीडीपी बढ़ रहा है ओवर टाइम, ये बोलना है। दूसरी बात, पीपीसी के अंदर थे, पीपीसी के पास आ रहे हो प्रीवियसली अनएम्प्लॉयड रिसोर्सेज को यूज करके। और आखिरी बात, इसके अंदर एग्रीगेट डिमांड शिफ्ट का लिंक है, वो शिफ्ट हो राइट पे तो हम एक्चुअल ग्रोथ लेते हैं। और ये शॉर्ट रन कॉन्सेप्ट है। अलबत्ता इसमें तो खैर शायद एक आधा मार्क ही होगा तो हमने ज्यादा बात की है, लेकिन एहतियातन लिख दिया करो, कभी कभी दो भी होते हैं। अब 4 मार्क्स हमने अपेरेंटली लेने हैं एनालिसिस करके रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड अनएम्प्लॉयमेंट। अब मुझे बताएं, इनका आपस में डायरेक्ट रिलेशनशिप होना चाहिए या नेगेटिव रिलेशनशिप? जब इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा होगी, अनएम्प्लॉयमेंट कम है, तो इनका इनवर्स रिलेशनशिप होना चाहिए। इट्स नॉट डायरेक्ट लिंक, उल्टा रिलेशनशिप है। इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी। तो नाउ लेट्स लुक एट द फिगर्स एंड देखते हैं कि किस हद तक ये इनडायरेक्ट रिलेशनशिप, इनवर्स रिलेशनशिप प्रूव हो रहा है फिगर 1.1 और फिगर 1.2 में। ये है जी फिगर 1.2, फिगर 1.1 ये है। ये जी जीडीपी दिखाया है उसने। ठीक है, कि 2008 से पहले रियल जीडीपी गिरा है, परसेंटेज चेंज इन जीडीपी पर ईयर, फिर जरा बढ़ा है 3% तक, फिर स्लो स्पीड पे बढ़ा है, लेकिन 17 के बाद 18 में फिर नेगेटिव हो गया, काफी डिक्लाइन किया है। अब हमें क्या ढूंढना है कि क्या 2008 और 10 के बीच में, बल्कि 8 से 12 के पीरियड में अनएम्प्लॉयमेंट कम हुई है, क्योंकि जीडीपी तो बढ़ा है इससे। ठीक है, फिर हमने देखना है कि 12 से लेके 18 स्पेशली, जबकि बहुत ज्यादा जीडीपी गिर रहा है बाद में, तो क्या हम्म, क्या हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ी है? लेट्स सी इफ देयर इज एनी कोरिलेशन।
Let me try and bring them both on the same OLane. There is too much of इनको ये डेटा इस तरह देना नहीं चाहिए। खैर आप पेपर में तो अलग अलग सामने लिख सकते हो। चलें इसको मैं बड़ा करता हूँ। ये देखिए 2008 से 12 तक जीडीपी गिरने के बाद बढ़ा है काफी। सो बेसिकली 9 टू 12 हमें देखना है कि क्या अनएम्प्लॉयमेंट कम हुई है उस वक्त में, और 12 से बाद में स्पेशली 16 ऑनवर्ड्स 18 में इन पर्टिकुलर क्या अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है, और अगर नहीं तो हम वेरिएंस भी बताएंगे। जी 9 से 12 हैज अनएम्प्लॉयमेंट रेट फॉलन। No. जीडीपी बढ़ा था, अनएम्प्लॉयमेंट रेट काइंड ऑफ स्टेबल है, कोई खास रिस्पांस नजर नहीं आ रहा। 17 ऑनवर्ड्स जीडीपी गिरा है और यस अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफी स्पीड पे बढ़ता हुआ नजर आया है। कहाँ 23% पे था और वो 27.5 पे चला गया। तो yes, there is correlation to some extent of the negative relationship between the latter part of both graphs when percentage change in GDP was negative or declining. Unemployment rate was rising between 2016 and 19. However, when economy was experiencing economic growth between 9 and 12, unemployment rate kept fluctuating, so it cannot be conclusive. So there is some evidence, but द क्लियर कट रिलेशनशिप कैन नॉट बी स्टैब्लिश्ड। कुछ समझ आया? मैंने कोई इकोनॉमिक्स यूज नहीं की, दो ग्राफ्स को पकड़ा। इकोनॉमिक्स कितनी यूज की कि इनका एक आपस में इनवर्स रिलेशनशिप एक्सपेक्टेड है। जो ग्राफ बोल रहे हैं उसके मुताबिक आपने एक्सप्लेन कर देना है। हर कमेंट के आपको एक एक मार्क वो देता जाएगा। इकोनॉमिक ग्रोथ को डिफाइन करने के शायद एक या दो दे दे अच्छी तरह करने के। उसके बाद जी नेगेटिव रिलेशनशिप एक्सपेक्टेड है, एक मार्क वहां दे देगा। कहाँ वो हो रहा है, एक मार्क वहां पे, थोड़ा सा पीरियड्स का नाम ले लिया, एक और मार्क। और कहाँ नहीं शो हो रहा, अगर कंक्लूजन देना कि जी कंक्लूसिव नहीं है, देयर इज सम एविडेंस ऑफ द रिलेशनशिप इन द डाटा। तो समझ आ रहा है मेरे बच्चों? अब देखो एक्चुअल इकोनॉमिक ग्रोथ, हाँ दो मार्क्स हैं जी, इज मेजर्ड बाय परसेंटेज चेंज इन अ कंट्रीज रियल नेशनल आउटपुट इन अ पीरियड ऑफ टाइम। इसलिए मैंने कहा था ज्यादा लिखा करें, वो पीरियड ऑफ टाइम भी चाह रहे हैं, तो हमने क्या कहा, राइज इन रियल जीडीपी ओवर टाइम। ऑलरेडी हमारे दो मार्क्स आ चुके थे। लेकिन मूवमेंट फ्रॉम इनसाइड पीपीसी टुवर्ड्स पीपीसी, एग्रीगेट डिमांड का शिफ्ट, शॉर्ट रन का कॉन्सेप्ट और अच्छा करेगा। दो मार्क्स आपके आ गए। General trend, employment fluctuates, but there is a general rising trend. Declining rates of growth are linked with increasing levels of unemployment, or there is an inverse relationship between growth and unemployment. उसने basics बताई। फिर specifically negative rates of growth in GDP correspond to higher levels of unemployment. General growth trend is falling. खैर इसने थोड़ा सा यहाँ से ड्रिफ्ट ली है, हमारा एक मार्क शायद कट जाए क्योंकि डाटा क्लियर नहीं था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वो कह रहे हैं जी जनरल ट्रेंड क्या होता है, इस ग्राफ का एम्प्लॉयमेंट फ्लक्चुएट कर रही है लेकिन ओवरऑल राइज कर रही है। इकोनॉमिक ग्रोथ फ्लक्चुएट नहीं कर रही और ओवरऑल गिर रही है, तो प्रूव हो रहा है कि रिलेशनशिप इनवर्स है दोनों के दरमियान। ये हमने भी ले लिया था मार्क। ने कहा जी नेगेटिव रेट्स ऑफ ग्रोथ, हाईएस्ट लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट 2017-18 के बीच में हो रहे हैं, जनरल ग्रोथ ट्रेंड इज फॉलोइंग। मेक सेंस? तो एनीवेज वो उसने हमेशा बोलता है जी एनी रीजनेबल आंसर व्हाट वी एक्सप्लेन्ड शुड गेट अस ऑल 5, समटाइम्स मे बी 4। बच्चों ये आसान लगा या मुश्किल लगा? थोड़ा सा मैं आपके कमेंट सुनना चाह रहा हूँ। दे आर वेरी वेरी सिंपल, ओ लेवल स्टाइल है ये। जी बेटे। नॉट एट ऑल। आपको कोई नजर आ रहा है मार्क्स स्कीम में? ये चीजें ना मेरे हिसाब से आपका टाइम मैनेजमेंट खराब करेंगी। बेटे बहुत टफ टाइम मैनेजमेंट है P4 की। जस्ट आंसर द क्वेश्चन, रेलिवेंट लिखो जितना दिल करता है, लेकिन डू नॉट गो बियॉन्ड द नीड। 20 मार्क के क्वेश्चन में यस यू नीड टू डू दोस थिंग्स, नॉट इन अ 5 मार्क सेक्शन ए क्वेश्चन, जब तक उसने पूछा भी नहीं है। अब जी अब हम चल रहे हैं, ये थोड़े आखिरी वाले डेटा से हमें बहुत हेल्प मिलती है P4 में। असेस द एविडेंस प्रोवाइडेड। सो अपने इकोनॉमिक्स नॉलेज को साथ रखो लेकिन एविडेंस को यूज करो फॉर एंड अगेंस्ट about the significance of the performance of state-owned electricity monopoly as a contributor to decline in South Africa's economy. अब बहुत अच्छा क्वेश्चन बना हुआ है। वो कहते हैं जी मैंने जो डेटा में आपको इन्फॉर्मेशन दी है उसमें असेसमेंट लगाओ और कंक्लूजन दो अप टू 2 फॉर हाउ सिग्निफिकेंट इट इज। हम प्रूव करेंगे अप टू 2 फॉर कितना सिग्निफिकेंट नहीं है, और फिर कंक्लूजन क्या ये वाकई मोस्ट सिग्निफिकेंट है। सो आर यू क्लियर ऑन द कॉन्सेप्ट हियर? आई विल गो देयर। सबसे पहले क्वेश्चन को एक बार फिर, असेस द एविडेंस प्रोवाइडेड। आपने अपना
पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं देनी, एविडेंस को यूज करना है, अपनी इकोनॉमिक्स नॉलेज को और डेटा एनालिसिस स्किल्स को यूज करना है। क्या यही मेन प्रॉब्लम था? अप टू 2 मार्क्स, यस। फिर अप टू 2 मार्क्स, नो, और भी प्रॉब्लम्स थे। इवैल्यूएशन किस हद तक इसने कंट्रीब्यूट किया? तो लेट्स जस्ट गो स्ट्रेट टू द डेटा, एंड आई थिंक एचलीना वांट्स टू आंसर इट। लेट्स सी No, बेटे। I don't. यू डोंट? खैर, लेट्स सी। सबसे पहले उसने क्या बोला है जी, तो आराम से देखते जाएं। ऊपर मुझे कोई इतना खास एविडेंस, सिवाय इसके कि थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट ऑफ रेलवे, इलेक्ट्रिसिटी, कई उसने इंडस्ट्रीज बताई हैं, यहाँ पे अगेंस्ट एविडेंस मिल रहा है कि मेन कंट्रीब्यूटर वो नहीं है। तो यहाँ पे हम पहले वो 2 मार्क्स ले लेते हैं। एज स्टेटेड इन द डेटा, South African government, when it tried to reduce income inequalities, what it did, it used some reforms which kind of backfired, ठीक है? Basically, poor organization and mismanagement हुई, not just in electricity production but railways, poor facilities, airways, हर जगह पे इनकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम्स थी वो काफी नजर आई हैं। फिर अगेन उसने, अब थोड़ा सा और देखते हैं जी ऑपोजिट इसका एविडेंस, क्योंकि मुझे इस पैराग्राफ में मुझे काफी एविडेंस फॉर स्टेट ओन्ड इलेक्ट्रिसिटी का नजर आ रहा है। नीचे देखते हैं उसके अगेंस्ट एविडेंस। Further evidence of economic difficulties can be found in mining industry. So there are other industries contributing to the decline as well, such as mining industry, which is a significant part of South Africa's economy. उनमें एक कंट्रोवर्शियल रिफॉर्म लगा दी थी ताकि इक्वालिटी आए, उसके रिजल्ट में एफिशिएंसी सफर हुई, राइजिंग कॉस्ट, ब्यूरोक्रेसी, कई माइनिंग फर्म्स बंद हो गई, मल्टीनेशनल छोड़ गए। सो सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन वाज नॉट द मेन रीजन। यहाँ पे हमने 2 मार्क्स ले लिए अगेंस्ट के। अलबत्ता जो सेकंड लास्ट पैराग्राफ है, इकोनॉमिक जो डिक्लाइन है, उसमें कंट्रीब्यूशन इलेक्ट्रिक सप्लाई इंडस्ट्री का भी है। वो सर्वाइव ही नहीं कर पा रहे मिसमैनेजमेंट की वजह से, राशनिंग करनी पड़ रही है उन्हें, लोड शेडिंग, पावर कट्स करने पड़ रहे हैं, जिससे हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज को कॉस्ट बढ़ रही हैं। उसके अलावा जी अनएम्प्लॉयमेंट इसकी वजह से बढ़ी है। आखिरी स्टेटमेंट, द कंपनीज डेट्स एडेड सिग्निफिकेंटली टू साउथ अफ्रीका's करंट नेशनल डेट टू जीडीपी रेशियो ऑफ 56%। साउथ अफ्रीका की नेशनल डेट जो कि 56% है जीडीपी का, उसमें बिगेस्ट थ्रेट आई बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी परफॉर्मेंस, ठीक है? तो यस, यहाँ पे एविडेंस उसके हक में है। बाकी माइनिंग में भी मसला है, रेलवेज में भी, एयरवेज में भी, पूरा मुल्क ही एक किस्म का ब्यूरोक्रेसी और राइजिंग कॉस्ट, अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार हुआ हुआ है कई दूसरी इंडस्ट्रीज की वजह से, नॉट जस्ट इलेक्ट्रिसिटी। इट इज वन ऑफ द मेन कॉन्ट्रीब्यूटर्स बट नॉट द ओनली कॉन्ट्रीब्यूटर। तो बच्चों समझ आ गया सबको? एक बार फिर क्वेश्चन देखते हैं, फिर इसकी मार्क्स स्कीम को रेफर करते हैं। Significance. Assess the significance. So it's one of the main contributors, Right. but not the only contributor. Mining, railways, airways और मिसमैनेजमेंट, पोअर रिफॉर्म्स, बहुत सारी रीजंस इसमें आई हैं। डेटा उठा उठा के अपने वर्ड्स में प्रोड्यूस करना है बच्चों, नथिंग मेजर। ये आसान होता है सेक्शन ए। Electric supply is fundamental to functioning of an economy. The company has been unable to meet national demand for electricity. Power cuts, एक mark. Article mentions other industries in decline, but states that electricity company is the biggest threat. दूसरा mark उसके हक में। Lack of electricity has had an effect on outputs of mining, manufacturing that had led to unemployment. General uncertainty has reduced investment. Multinationals have left the country. We are producing below our PPC. No similar figures for other industries, so a definite conclusion about it. Exact significance of electricity is not possible. It is one of the contributors, not necessarily the main. Company did add something to the debts of the country. तो एनीथिंग हमने जो चीजें निकाली हैं वो आपको एक एक स्कोर दिए जा रही हैं। आपको समझ आ रहा है बच्चों? कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? I think we made one small mistake. लाइक व्हाट? We focused on this side a lot. We didn't break these down. We generalized this. नहीं, हमने किया था, ट्रस्ट मी, दैट्स हाउ इट्स एक्सपेक्टेड। यहाँ पे उसने आपको मार्क्स स्कीम दी हुई है, उसने आंसर नहीं दिया। आंसर इज ऑलवेज पहले वन साइड एंड सेकंड साइड, सो ऑलवेज लुक एट दैट, अदरवाइज इट बिकम डिफिकल्ट टू आंसर। ठीक है जी बच्चों, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? अब बड़ा आसान क्वेश्चन है। इवेल्युएट वेदर अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट एंड मैनेजिंग अनसर्टेनिटी आर द मोस्ट इफेक्टिव वेज टू इंप्रूव प्रॉस्पेक्ट्स फॉर साउथ अफ्रीका's इकोनॉमी। अब हमने एक साइड देखनी है कि क्या इन्वेस्टमेंट, और दूसरी साइड क्या मैनेजिंग अनसर्टेनिटी,
मोस्ट इफेक्टिव वेज है इनको कंपेयर करना है. सो आई वांट यू गाइस टू नाउ काइंड ऑफ टेल मी, अगर इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट होती है डोमेस्टिक भी और मल्टीनेशनल्स की भी, तो हमें क्या क्या फायदे आते हैं एज एन इकोनॉमी. शाबाश, नॉट बैड. वो एक्सपोर्ट भी करेंगे हमारे यहाँ से तो हमारा करंट अकाउंट बेहतर होगा. एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी हमारे वर्कर्स को ट्रेन कर देंगे. क्या कह रहे हैं, गवर्नमेंट को टैक्स देंगे, यस, जिसको गवर्नमेंट फिस्कल डिविडेंड यूज करना कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर करवा सके. हाँ, शाबाश. एनीवन एल्स अदर देन या हैप्पी यू डिड इट, और कोई? मैनेजिंग अनसर्टेनिटी पे बात करें जी. अनसर्टेनिटी कैसे हो रही है? इलेक्ट्रिसिटी कट्स हो रहे हैं, ठीक है जी. मिसमैनेजमेंट्स हो रही हैं, कॉन्टिन्यूस इनक्वालिटीज हो रही हैं, ठीक है. जिस इंडस्ट्री को उठा के देखो वहां पे मिसमैनेजमेंट नजर आ रही है. तो जब तक इकोनॉमी में सर्टेनिटी नहीं आएगी, मैनेजमेंट अच्छी नहीं होगी, उसको हम उसकी परफॉर्मेंस को क्या कहते हैं, रिफाइन नहीं कर सकेंगे, रिफॉर्म नहीं कर सकेंगे. इकोनॉमिक एजेंट्स विल नॉट बी कॉन्फिडेंट इन इन्वेस्टिंग. तो पहले इनसर्टेनिटी को मैनेज करना पड़ेगा, फिर इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट होगी. वी कैन नॉट अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट विदाउट रिमूविंग दिस अनसर्टेनिटी इन द इकोनॉमी जी. वन वे ऑफ आर्ग्यूइंग कि इन्वेस्टमेंट आने से ही अनसर्टेनिटी रिमूव हो जाएगी, बट मेनली इन्वेस्टमेंट तब आती है व्हेन द कंट्री रिमूव्स द अनसर्टेनिटी. हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट अभी क्यों नहीं आ रही? जब तक गवर्नमेंट नहीं बनी थी, वाज सच अनसर्टेनिटी. अब देखना कॉन्ट्रैक्ट साइन होंगे, इन्वेस्टमेंट खुद ही आना शुरू हो जाएगी. सो यू गेट इट जी. लेट्स जस्ट रेफर टू मार्क स्कीम. Finish this paper. Section A: various government reforms and poor performance of some scale. हाँ, यही है. Some state industries have undermined confidence in the entire South African economy. This can be illustrated by the lack of investment by private sector, जिसकी वजह से माइनिंग इंडस्ट्री वगैरह बंद हुई, अनएम्प्लॉयमेंट हुई. साउथ अफ्रीकन इकोनॉमीज हैज आल्सो बीन डिमिनिश्ड इन द इंटरनेशनल इकोनॉमी. एफडीआईज, मल्टीनेशनल्स आना बंद हुई. हाई अनएम्प्लॉयमेंट मींस लो कंज्यूमर एक्सपेंडिचर एंड लो ग्रोथ. फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट जो मैंने बात की थी, फॉर इम्प्रूवमेंट सीम्स limited in short run. Longer term is needed. It needs to overcome a skills shortage by reforming education and restrictive trade union practices. Nevertheless, there is some increase in FDI, long term increase. यार उसने क्वेश्चन को अजीब तरीके से आंसर किया. क्वेश्चन कुछ और था और मार्क्स स्कीम किसी और साइड पे जा रही है. दिस इज समटाइम्स माय प्रॉब्लम विद देम. Evaluate whether attracting investment and managing uncertainty are the most effective ways to improve the future prospects. इधर वो कह रहा है ऑलरेडी जो इंप्रूवमेंट आ चुकी है. डू यू सी द टाइम लैग हियर? क्वेश्चन पूछ रहा है फ्यूचर में क्या होना है और आंसर बता रहा है पास्ट में क्या हो चुका है. Are you getting the point? The question was clearly targeting, evaluate करो, तोलो कि क्या attracting investment या managing uncertainty दोनों में से most effective way कौन सा है to improve the prospects. Prospects are always for future of South Africa's economy. आंसर में उसने सारी प्रॉब्लम्स दोबारा हाईलाइट कर दी हैं. सो आई एम लिटिल डम्फाउंडेड. ओके, आप बताओ आपको क्या लग रहा है? I'm thinking that because they've said specifically South Africa, by highlighting what exactly problems are caused by investment and management and the managing uncertainty, we can say that because these are the problems, and if we do that, this will go away. That's why. Does that make sense? Because otherwise, how are we specifically dealing with South Africa's economy? नहीं, वो तो हमने भी साउथ अफ्रीका इकोनॉमी की ही बात की थी. बट द पॉइंट हियर इज कि फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स में अगर आप पढ़ो, फॉर इम्प्रूवमेंट सीम्स लिमिटेड इन शॉर्ट रन. Longer term, it needs to overcome a skills shortage by reforming education. Restrictive trade union practices. Nevertheless, there is some increase in FDI, long term increase in infrastructure, increase in employment, economic growth in the economy. I don't understand कि इसने time frame का क्यों यहाँ पे गड़बड़ की है. But anyways, this is a one-off question. Like I said, 43 is usually the tricky one. ठीक है. खैर इसके बाकी क्वेश्चन आसान थे. ये 7 में से आपको 3 तो मिल ही जाएंगे on the basic comp. अच्छा, आप बता दो शलीना. She's thinking that she understands the question. My daughter is being very adamant. No, बताओ. I mean, that's how I would have done it before you started. All right, great if you would have done it like that. बच्चों, आप इस बाकी सबको भी ऐसा ही लगा था कि जी आंसर डायरेक्शन और तरफ जानी चाहिए. I need some bright comments. Abdul Rauf, Fasia, good kids. मुझे बताइए, आपको ऐसा लगा है कि ये क्वेश्चन वो पूछ रहा है जो उसने आंसर किया हुआ है?
Would somebody speak up? This is when online classes become a little confounding. Anyways, बच्चों कोई ना कोई आओ, let's have a discussion, economic discussion here. जो मैंने इसको इंटरप्रेट किया है, इवैल्यूएट करें क्या इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना या अनसर्टेनिटी मैनेज करना, उन दोनों में से बेहतर कौन सा है साउथ अफ्रीका इकोनॉमी के फ्यूचर के लिए? जबकि अश्लीना आप जरा ऊंचा बोले ताकि सब सुन सके. It doesn't say investment or, it says investment and. मैंने तो यही बोला था, लेकिन अब ये क्वेश्चन का मार्क स्कीम देखो ना, दैट इज काइंड ऑफ हाईलाइटिंग द प्रॉब्लम्स अगेन. Various government reforms and poor performance of some state industries have undermined confidence in the entire South African economy. फिर वो गया है, this can be illustrated by lack of investment by private sector in mining industry. South African economy has also been diminished क्योंकि FDIs नहीं आई. Higher employment means low consumer expenditure, low growth in aggregate demand. ये सब past का है, जबकि वो पूछ रहे हैं future prospects. Are you getting the point? But it's also asked you what are the most effective ways. So by saying that because these two are the causals of these problems, if we remove this, we're going to be better off. No, but like future prospect पे वो कह रहे हैं seem limited in the short run. Longer term, it needs to overcome a skills shortage. चलें, anyone else जी? I'm a little bit unhappy with the mark scheme. नहीं, you are wrong. Anyways, let's see. You are wrong because the question की statement जब तक अगर मैं आपसे पूछता before showing the mark scheme, you would have said similar things. Okay, good if you can analyze them. जी, anyone else? Now I need someone else. कोई बच्चा बोले प्लीज यहाँ पे, ताकि थोड़ा सा हम एक ओवरऑल इसको क्वेश्चन को डिस्कस करके फिर आगे मूव करें. चले, अगर आपको भी ऐसा लगे या तो गुड. थैंक यू. या आई नीड सम मोर इनपुट फ्रॉम किड्स लाइक अब्दुल रऊफ एंड आप लोग. अब्दुल रऊफ, वेयर आर यू? ओके, मैनी. आपको क्या लग रहा है? हाँ शरियार, यस. एब्सोल्युटली, लेकिन क्या क्वेश्चन में ये बात आ रही है? क्वेश्चन क्या रहा है कि वेदर अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट एंड मैनेजिंग अनसर्टेनिटी आर द मोस्ट इफेक्टिव वेज, या और भी रास्ते हैं? आई यू अंडरस्टैंडिंग? फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स की बात कर रहा है. वो कहता है जी इस तरह हासिल करें या इस तरह हासिल करें. अश्लीना बोलो, मे बी यू अंडरस्टैंड इट बेटर. They've said improve the prospect for South Africa's economy, which Yes. means that you're taking South Africa in its current state. You're Mhm. saying that these are the issues in South Africa currently, which means even if there are other ways, even if it's not elaborated in the data, listen to me. No, no, I've listened to you. अगर यही क्वेश्चन होता, evaluate whether fiscal policy or monetary policy is the most effective way to improve South Africa's future prospect, you would have given the whole details of fiscal, whole of monetary, and then linked it to South Africa's problems. How can it be different in this question? Because it's specifically said that you've got issues in South. See, the thing is, I would go through the data 1st. Mhm. Number one, because I'm acquainting myself with specifically their economy, not my knowledge on Okay, economics in okay. general. So once I pick up that, if I see that the most problems are caused by investment management uncertainty, I would say चले चले, मेक सेंस. अगर कुछ बच्चों को ज्यादा अच्छा समझ आ रहा है, हर बंदे का अपना अपना व्यू है, और इसमें सीआई का व्यू जो है इट्स अलाइनिंग मोर विद अश्लीना एंड मे बी याया एज वेल. तो हाँ, लास्ट पॉइंट जल्दी करो बेटी, if बिकॉज़ I 40 read the minutes. data about South Africa and there was other things that were happening in their economy which were not related to investment and managing uncertainty, then I would say no. Does that Okay, make sense? still doesn't make sense to me, but makes sense. अगर बच्चों को भर रही है तो ठीक है. I would look at these questions in solitude again. अच्छा, आपको क्या लग रहा है क्वेश्चन पूछ क्या रहा है शहरियार? आई वांट टू नो दैट. आपको क्या लगा था जब क्वेश्चन पढ़ा था बिफोर यू सॉ द मार्क स्कीम? Exactly. 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 This is where my whole case rests. Evaluate whether in attracting investment and managing uncertainties are the most effective ways, या कोई और अच्छे रास्ते भी हैं. उसमें हम आते हैं कि यस ट्रेड यूनियंस को ठीक करो, ये सब कुछ करो, एजुकेशन दो. वो बाद में बात आती, लेकिन फ्यूचर के लिए इनको वो ये कह रहे हैं कि ये अट्रैक्ट कैसे होंगी, वो ये जवाब दे रहे हैं, जबकि पूछ रहे हैं
कि इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना या मैनेजिंग अनसर्टेनिटी ये अच्छा तरीका है या कोई और अच्छा तरीका है? So I'm still not clear about their question. Anyways, let's move on to section B. This is one of, ये दोबारा ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा इंशाल्लाह. तो let's move on to section B. अब बच्चों अपना चॉइस करें पहले, उसके बाद हम करते हैं. आई वुड ऑलवेज गो फॉर एफिशिएंसी क्वेश्चन ओवर मार्केट स्ट्रक्चर्स एनी टाइम, ऑल्दो इसमें मार्केट स्ट्रक्चर्स का भी आसान क्वेश्चन नजर आ रहा है मुझे. First one, number two is easier question. Pollution is caused when consumers or producers make decisions based on self-interest. This is a sign of market failure. साफ उसने हमें बता दिया. With the help of a diagram, लेकिन इसमें तीन चार बनेंगे. Evaluate the extent to which government policies should rely upon market forces to address this market failure. कौन कौन सी गवर्नमेंट पॉलिसी मार्केट फोर्सेस को रिलाई करती हैं, सब्सिडीज, टैक्सेस, ट्रेडेबल पोल्यूशन परमिट्स, और कौन सी नहीं करती, रेगुलेशंस, प्रोवाइडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन. समझ रहे? तो हम इस तरह करके हैंडल करेंगे. सबसे पहले मुझे कोई बच्चा बताए पोल्यूशन कौन सा मार्केट फेलियर है. सिर्फ प्रोडक्शन, इसमें कंज्यूमर्स की बात भी है. तो नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी, एक्सटर्नल कॉस्ट का मार्केट फेलियर है. प्रोड्यूसर्स की तरफ से भी नेगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी, और कंज्यूमर की तरफ से भी डीमेरिट गुड्स वगैरह का कंजम्पशन या लिटरिंग, इस तरह की बातें. सेल्फ इंटरेस्ट यही है ना कि अपने मजे के लिए कर रहे हैं हम सिगरेट कंज्यूम, लेकिन लोगों पे बुरा हार्म आ रहा है थर्ड पार्टीज पे. मार्केट फेलियर को प्रॉपर बताना है. फिर जी डायग्राम बना के हमने किस हद तक गवर्नमेंट पॉलिसीज खुद सॉल्व कर लेंगी, डायरेक्ट प्रोविजन गवर्नमेंट करे या लॉज लगाए, उसका इवैल्यूएशन करेंगे, एनालिसिस करेंगे, और फिर किस हद तक मार्केट फोर्सेस को यानी सब्सिडाइज करके, टैक्सेस छोड़ के या लगा के टैक्सेस हम इसको मसले को हल कर सकते हैं. ये आपका क्वेश्चन का ओवरऑल फ्रेमवर्क है. एनीबडी हु इज हैविंग अ मेजर प्रॉब्लम विद दिस क्वेश्चन? इस तरह के लिए राइट जी. तो लेट्स क्विकली रेफर टू द मार्क स्कीम. सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, और इसको हम सबसे पहले 14 मार्क्स हैं जी. 6 नॉलेज के, 8 एनालिसिस के. एन एक्सप्लेनेशन ऑफ द लिंक बिटवीन पोल्यूशन एंड मार्केट फेलियर. Recognition that pollution can be caused by production or consumption. Explanation of negative externalities. आपको सारे मार्क्स आराम से आए जा रहे हैं. Use of a diagram to analyze the links between negative externalities and market failure. Analysis of how market forces can be used to solve the problems of market failure caused by negative externality. अब एक बार थोड़ा सा इसको कर लेते हैं. सबसे पहले मार्केट फेलियर को कोई बच्चा अच्छी तरह 3-4 लाइंस में बताए. एनी वन, मार्केट फेलियर. बहुत आसान सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं. बहुत अच्छे. कुछ गुड ज्यादा बन जाती हैं, कुछ कम, रिसोर्सेज ओवर या अंडर एलोकेशन होते हैं, या कहीं कॉस्ट नहीं मिनिमाइज कर पा रहे, या कहीं कंज्यूमर प्रेफरेंसेस के मुताबिक ऑप्टिमम लेवल सोसाइटी के मुताबिक नहीं बना पा रहे. ये है जी मार्केट फेलियर. व्हेन फ्री मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई fail to allocate resources efficiently, some goods and services are overconsumed and produced, some are underconsumed and underproduced. This causes market failure. Optimum allocation of resources जहां सोसाइटी चाहती है उससे हम ज्यादा या कम बना रहे होते हैं. अब जी recognition that pollution can be caused by production or consumption. Negative externalities. कोई बच्चा शरियार के अलावा नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज की डेफिनेशन दो. व्हाट आर नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज? एग्जांपल्स एक अच्छा खासा 2-3 लाइनर मैंने सुनना है. जुबैश आप बता सकते हो बेटे? शाबाश. This was such a good definition. Yes, harmful, negative spillover effects on third parties who are not involved in that economic decision, in that economic activity. ना वो consumers हैं, ना वो producers हैं, उन पे बुरे effects spillover आ रहे हैं. Examples are pollution, congestion, noise, uh, traffic में हो, air में हो, water में हो, ये सब negative externalities होती हैं. ठीक है जी. अब बेटे डायग्राम क्या बनेगा? एक प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटीज का,
जिसमें सप्लाई डिमांड कर्व तो एमएसपी होगा, सप्लाई कर्व एमपीसी होगा, और उसमें जब एक्सटर्नल कॉस्ट हम शामिल करेंगे वो एमएससी बन के कॉस्ट बढ़ने से लेफ्ट पे शिफ्ट होएगा। क्यू मार्केट से क्यू ऑप्टिमम तक हम ओवर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज कर रहे थे नेगेटिव एक्सटर्नल कॉस्ट का। स्ट्रेट बना के दिखा दूं, आप लोगों को याद है या बना के दिखा दूं, बता दें मुझे। ओके या लेट्स मेक इट, आपका थोड़ा सा ग्राफ में है तो इसको हम जरा और अच्छा कर देते हैं। ये देखो बेटे, इसमें लेबल्स मैटर अ लॉट। आप इकोनॉमिक्स कर रहे हो तो लेबल्स के बगैर काम नहीं चलता। सबसे पहले जस्ट मेक श्योर कि यू ड्रॉ द बेसिक एक्सिस एंड लेबल इट करेक्टली। प्राइस, कॉस्ट, बेनिफिट, पूरा एफिशिएंसी के चैप्टर का सेम लेबल्स हैं, अपार्ट फ्रॉम किसी किसी में खाली कॉस्ट आ रहा होता है, तो अगर वो भी लिखते हैं तो आपकी सेफ्टी है। राइट, लेट्स मूव ऑन जी। पहले लगाएं ये सिंपल डिमांड सप्लाई कर्व। डिमांड कर्व इस केस में प्राइवेट बेनिफिट कर्व भी था और सोशल बेनिफिट, क्योंकि हम एक्सटर्नल बेनिफिट्स को तो फिलहाल इग्नोर कर रहे हैं ना। सप्लाई कर्व ऑन द अदर हैंड वाज ओनली प्राइवेट कॉस्ट कर्व। हमने सोसाइटी पे थर्ड पार्टीज पे जो एक्सटर्नल कॉस्ट जा रही हैं वो इग्नोर की हुई हैं, इसलिए ओवर एलोकेशन हो रही है, क्वांटिटी मार्केट ज्यादा बन रही है चीज। अगर एक्सटर्नल कॉस्ट, प्राइस भी बना लेते हैं, सॉरी प्राइस मार्केट, अगर एक्सटर्नल कॉस्ट ऐड होती प्रोडक्शन कॉस्ट के साथ, सप्लाई कर्व S1 पे शिफ्ट होता कॉस्ट बढ़ने से। अब ये प्राइवेट कॉस्ट भी है और सोशल कॉस्ट भी। वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द टू कर्व्स इज द मार्जिनल एक्सटर्नल कॉस्ट। अब हमारा ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट आ गया, Q ऑप्टिमम। ये हमारा ओवर प्रोडक्शन, ओवर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज हो रही थी। इसको एक्सप्लेन कर देंगे एंड दैट्स द एंड ऑफ इट। अब इधर ही कर लेते हैं छोटा सा बना के कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटीज का, नेगेटिव कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटीज का। पीसीबी, प्राइस कॉस्ट बेनिफिट आउटपुट। डिमांड कर्व जो कि प्राइवेट बेनिफिट कर्व होता है अगर एक्सटर्नल बेनिफिट्स ना हो, इस केस में ये प्राइवेट बेनिफिट्स जो हैं, और सप्लाई कर्व को अब हम सोशल कॉस्ट स्ट्रेट अवे लिख देते हैं क्योंकि उसमें एक्सटर्नल कॉस्ट का कॉन्सेप्ट हम इस वक्त नहीं ले रहे। ये हमारी प्राइस मार्केट, ये इक्विलिब्रियम मार्केट, और ये क्वांटिटी मार्केट। अब मुझे बताएं, स्मोकर का बेनिफिट ज्यादा है सोसाइटी से या सोसाइटी का बेनिफिट ज्यादा है स्मोकर से? क्या स्मोकर ज्यादा एंजॉय कर रहा है सिगरेट को या सोसाइटी? एनीवन? स्मोकर। तो बेसिकली सोसाइटी तो एक्सटर्नल कॉस्ट फेस कर रही है। अगर हम इसमें से हम एक्सटर्नल कॉस्ट निकालें तो डिमांड कर्व नीचे शिफ्ट होगा, सोसाइटी कहेगी कम बने ये चीज। अब ये मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट माइनस मार्जिनल एक्सटर्नल कॉस्ट हमारा मार्जिनल सोशल बेनिफिट कर्व बन जाएगा। आउटपुट इतनी ज्यादा ज्यादा कंज्यूम हो रही थी तो इसमें आपने लिखना है ओवर कंजम्पशन, और प्राइस भी ज्यादा थी, वो भी ऑप्टिमम पे आ गई। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बच्चों, थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए। एफिशिएंसी इज अ वेरी हलवा टाइप यूनिट, ठीक है। अब थोड़ा सा वापस आते हैं क्वेश्चन पे। अब जी, क्या करे गवर्नमेंट कि मार्केट फेलियर को कम करे थ्रू यूजिंग मार्केट फोर्सेस? तो हमारे पास मेरे बच्चों, अच्छा वेरिएशन स्टेट वो आ गया, हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं। गवर्नमेंट कैन you know put indirect taxes on firms producing pollution external cost. They can also impose indirect taxes on consumption of demerit goods. उससे क्या होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी। बेशक ग्राफ बना दो, सप्लाई कर्व लेफ्ट पे शिफ्ट होंगे, वो सोशल कॉस्ट कर्व बन जाएंगे। प्राइस बढ़ने से कुछ कंज्यूमर्स कंज्यूम करना छोड़ देंगे, प्रोड्यूसर्स सप्लाई करना कम हो जाएंगे, तो जो ओवर प्रोडक्शन ओवर कंजम्पशन हो रही थी उसको हमने रोक लिया। तो ये हमने मार्केट फोर्सेस के थ्रू ही किया। लेकिन ये फेल क्यों होगा थोड़ा सा, या तो गवर्नमेंट ओवर एंड अंडर टैक्स कर देती है, या फिर डिमांड इतनी इनइलास्टिक होती है स्पेशली डीमेरिट गुड्स की कि उस पर इतना फर्क नहीं आता। फिर इनडायरेक्ट टैक्सेस का रिग्रेसिव इफेक्ट भी होता है, रेट तो सेम होता है लेकिन अमीर की इनकम का थोड़ा हिस्सा लेते हैं, गरीब का बहुत ज्यादा, तो इनकम गैप्स वाइड हो जाते हैं। साथ में ये थोड़ा सा आप रिच को कर रहे हो प्रमोट कि भाई आप खरीदते रहो अल्कोहल हाई प्राइस पे, गरीब बस नहीं खरीद सकेगा, तो उनकी पहुंच में स्टिल रहेंगी अलबत्ता वो कंपनीज जिन पे इनडायरेक्ट टैक्स लगेगा। येस, दे विल थिंक ऑफ मूविंग टू ग्रीनर टेक्नोलॉजीज।
और क्या कर सकती है गवर्नमेंट? कैन सब्सिडाइज द क्लीनर फर्म्स जो ग्रीन प्रोडक्शन कर रहे हैं, या दे कैन सब्सिडाइज मेरिट गुड्स ताकि लोगों को एहसास हो। तो एज अ रिजल्ट अगेन रिसोर्स एलोकेशन बेहतर होना शुरू हो जाएगी। सब्सिडीज एक्सटर्नल बेनिफिट के बराबर, एक्सटर्नल कॉस्ट के बराबर दी जा सकती नहीं, सब्सिडीज उनको एक्सटर्नल बेनिफिट के बराबर दी जा सकती हैं क्लीन फर्म्स को, ताकि डर्टी फर्म्स भी मूव करें और वो अपना सेल्फ ग्रीड की वजह से क्लीनर मेथड्स में आ जाएं। ट्रेडेबल पोल्यूशन परमिट्स दे सकते हैं, उसमें डर्टी फर्म का जल्दी खत्म हो जाएगा कोटा, उसको खरीदना पड़ेगा फ्रॉम क्लीनर फर्म्स, क्लीन फर्म को इंसेंटिव आएगा, डर्टी फर्म को भी इंसेंटिव आएगा कि मैं भी अपना पोल्यूशन कम करूं। गवर्नमेंट आसानी से मॉनिटर कर सकेगी पोल्यूशन के लेवल सारा कुछ, लेकिन अक्सर फाइंड आउट हु इज एमिटिंग हाउ मच बड़ा मुश्किल होता है पोल्यूशन फाइंड आउट करना, कल्प्रिट को ढूंढना, सही अमाउंट ऑफ ट्रेडेबल लाइसेंसेस बनाना कि कितनी कितनी पोल्यूशन अलाउ करनी चाहिए। कभी गवर्नमेंट बहुत जनरस हो जाती है, कभी बहुत स्ट्रिक्ट हो जाती है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी डिस्टर्ब हो जाती है। राइट, आई नो आई एम गिविंग अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन बट वी स्टडीड इट ऑल बिफोर। अखीर में जी ये थी मार्केट फोर्सेस। गवर्नमेंट टोटली इन पर रिलाई नहीं कर सकती क्योंकि डिमांड इन इलास्टिक है इन चीज़ों की जिनको कंज्यूमर यूज कर रहे हैं। तो हमें कुछ ना कुछ लॉज, अंडर 18 के लिए सिगरेट्स अल्कोहल का ना बिकना, ड्रंक ड्राइविंग के ऊपर लॉज, हमें साथ साथ लॉज भी यूज करने चाहिए, रेगुलेशन भी यूज करनी चाहिए, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन भी यूज करनी चाहिए। हमें डायरेक्ट प्रोविजन भी गवर्नमेंट कर सकती है कि जो जो अपना पोल्यूशन वाली चीजें बन रही थी वो गवर्नमेंट खुद प्रोवाइड करे इन अ क्लीनर ग्रीनर मेथड, तो उससे भी मार्केट फेलियर हो सकता है। तो एक हद तक मार्केट फोर्सेस पर रिलाई किया जा सकता है, बट बिकॉज देर काइंड ऑफ बाउंड बाय सेल्फ ग्रीड एंड प्रॉफिट मोटिव, दे विल नॉट अचीव एफिशिएंसी टिल गवर्नमेंट डज देयर। जी मेरे बेटे, डाल दें, बिल्कुल डाल दें। उसमें फिर आप मार्केट फोर्सेस को इन्वॉल्व कर रहे हैं कि कंज्यूमर्स को खुद एहसास हो, फर्म्स को खुद एहसास हो। So private firms, evaluation सुनो, are likely to aim for profit maximization, and this might lead to these firms focusing on private cost, ignoring social cost. The use of taxation to influence price and output is unlikely to remove all market inefficiency because it is very difficult to measure the correct amount of taxation that should be applied. Use of minimum price अगर हम demerit goods पे लगा रहे हैं would be partially effective and might have significant effects on firms' profit and employment और consumption शायद कम ना हो cigarettes की. Alternative use of price mechanism might be government to achieve a more precise control of negative externalities. For example, use a complete ban on consumption laws का इस्तेमाल. Conclusion should be attempted which examines the net benefits of each alternatives through direct government intervention or through use of market failure. Also, the impact on price and output in some circumstances takes a long time to be effective. Advertisement यानी ये जो nudge theory हम बोलते होते हैं, information campaigns is often costly and it's not always certain that it will have a sufficiently persuasive effect to ensure the correct level of output and consumption is reached. It is possible to show that government intervention, ये तो आप याद कर लें, हर efficiency question का conclusion यही है. It is possible to show that government intervention can reduce the level of inefficiency caused by existence of negative externalities, but it is not clear whether the net effect of government intervention will always be positive. Government भी fail हो जाती है. Some types of interventions will be more effective than others, depending on the nature of goods service under consideration. आखिर में लिखा हुआ एक्सेप्ट ऑल वैलिड रिस्पॉन्सेज, अपने वर्ड्स में यही बातें अच्छी लिख दें, आपको अच्छा खासा स्कोर मिलता है। दिस इज अ वेरी स्कोरिंग चैप्टर। आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस के ग्राफ भी बना सकते हैं, सब्सिडी का भी बना सकते हैं, हर लिहाज से आप रिसोर्स एलोकेशन के बारे में बात कर सकते हैं। जी बच्चों, एनी क्वेश्चंस ऑन दिस? आई डोंट थिंक वी हैव टाइम फॉर अनदर क्वेश्चन, बट एनी क्वेश्चन ऑन दिस? All right, G, let's welcome Ramzan in a day or so, and start being good students and good Muslims. So that's it. Let's have a good day. कल मुलाकात होती है, कल नहीं मतलब अब तो इनका पेपर हो रहा है, कुछ दिनों बाद मुलाकात होती है आपसे। कितने थोड़े बच्चे रह गए हैं, हाउ सैड।